Hello everyone, this is Dr. Vivek Nanoti, Principal, Priyadarshini Institute of Engineering and Technology, Nagpur. I welcome you all into the second part of my video on communication skills. Friends, in first parts, we have seen that if we have to improve our communication skill, it is an art, it is a skill, we have to practice it. And whatever communication skills we have today, we have to improve upon. And to improve is to change. We have seen this, and in this second part we will actually take and discuss some important tips that we end up by this video. You will get a solid tips on how to improve your communication skill, the ways of improving communication skills, both verbal and non-verbal. Friends, this is so important. And it's a first impression. Whenever you speak out some single word, hello, and then you have made an impression. You have not even uttered a single word. You have said, "May I come in, sir?" You have created your first impression, and first impression is the last impression. So before you spelling out a single word from your mouth, your personality will speak. The way you walk, the way you are humble, the way you dress up, the way you wear the smile, the neatness, cleanliness, the costumes, and yes, the way you wear a smile, the confidence you have on your face, friend, this will create the very first impression, and then that is a very long lasting impression. So friends, please be aware that whenever you meet somebody for a professional meetings or a personal meeting, you should make a wonderful impression on that. Wear a smile and greet before you say anything to whomsoever you meet. It's not ये तो अपना रोज का दोस्त है, इसको क्या गुड मॉर्निंग बोलना. No, everyone wants to be greeted and they feel very good if somebody greets. So friends, please remember that the content which you want to speak is very important, but with that, greeting and wearing a smile is very, very important. It's very essential to be technically sound. The point which I want to put across, that you are going for a meeting, you are presenting some very good subject, you are giving a public speech for that matter, you are conducting a meeting, you are attending a meeting. For that you will definitely need the knowledge, the subject about which you have to talk about. That is understood that you are expert in that. Otherwise, don't go for that meeting, don't attend those public meetings, do not get on the dais if you are not prepared on the subject. But friends, equally important is to ability to convey your idea. You have wonderful ideas, you have detailed study of the topic, but friends, for that seminar, the ability, how you will convey your ideas to the masses, that everybody will be happy, everybody will be completely satisfied with what you are saying. And this is where you need soft skills, this is where you need communication skills, friends. It is very important. So technically sound, the subject is very important, but having the style of expression, that is communication skill, is very, very important, friends. Who is illiterate, friends? This is an era, it is changed now. It is not somebody who cannot read, write, or computer literacy, right? Who doesn't know computer, they are illiterate. No, gone are the days. Who is illiterate now? Who doesn't know how to learn. Daily some new things are coming up, and you have to learn to learn. You must know the learning skills. And fine, you are into learning mode, but and then you have some wrong habits, wrong learning habits, the learning skills which are outdated. So unlearn those concepts. You have learned something, but it is not updated. Unlearn it. Learn to unlearn. Learn to learn. Learn to unlearn. And friends, the most important is learn to relearn. You need to relearn. Zamana badal raha hai. You need to relearn. Whatever is in, whatever is important, start learning. And then who will teach? I have done my doctorate, 26 years back. So that was the highest degree I felt that time. So after last 26 years, I am learning. I'm learning means what?
I am learning means self-learning. So friends, please remember this mantra. If you really want to get into, master the communication skills, you have to learn and learn, and it is self-learning. There are no classes for learning communication skills because the trends are changing. The English accents, the American accents, the words, the pronunciation, the articulation, the pronunciation, things are changing. So self-learning is the mantra. Thousands of teaching learning websites are available, friends. Go and find out. Learning resources, yes, their PDFs are available, the videos are available. Go and learn how people speak, how influencers speak, the way they speak. That is the impact. Content are common, but then still we say, I want to listen to communication skill by so and so. By so and so is so important because he has his own way and style of doing it. So learning resources, learning platforms, yes, Udemy, Coursera, edX, Swayam, NPTEL. I'm sure that you are watching my slides. Ebooks are available. A lot of interactive tools to practice your accents. Learning apps, YouTubes, and yes, these days virtual laboratories are available. Virtual laboratories, language laboratories are virtual. You can actually correct your grammar. You can actually correct घर बैठे बैठे. You can actually improve upon your accent, your pronunciation, your grammar, your construction of sentence. Yes, there are hundreds of apps, learning tools, and virtual laboratories are available to improve your language, especially English, friends. Now, very important, 6 important points I have pointed. There can be list of 100, but out of them 6 I have pointed out for students. Please note it down. They're very important. The very first thing to have a good communication skill is command on 4 languages. And why I'm saying 4 languages? Hindi being national, English being international. This is a global village. You guys will be working into the culture which is a global. You will be global employee. You will be global employer. You will be global citizen, my dear students. So English is must. Command on English is must. Regional language. If you are working in Gujarat, you should know Gujarati. If you are working in Maharashtra, Marathi यायला हवं थोडंसं. And one foreign language. German, French, Spanish, Japanese. Yes, it's so important to enhance your employability, friends. The communication skill through languages, learning new languages, you learn new culture. German and French I am promoting because they are English alphabets. Very easy to understand, learn, read, write. Fantastic. Please have this thing in mind. Second is appreciation, friends. If you want to make your communication successful, start appreciating people. Genuine appreciations are very important. Be a good listener. Listen to eminent speakers, friends, because you should know who are your role models. You want to, this is the way one should speak. This is the way to articulate our sentences. Listening to the eminent speakers, maybe live you get a chance or on social media. Yes, but listen to good speakers, good orators, and then you will have a command on that language. Convincing power and confidence must display. Unless you are convinced about the point which you want to put across, the people, why they will believe you, why they will accept you? They will not, because you yourself are not convinced. So whenever you are coming up with some content, अरे एक साबुन ही बेचने जाना है, you should be convinced that this soap is world's #1 soap. If you are convinced about that, then that convincing power will automatically come, and the confidence will reflect from your face, and the product will be sold. Logical thinking, friends. Illogical comments are never accepted. Be logical, and there are many more such suggestions, friends. Then there are what are other ways of expressing communication? It is body language, it is confidence, expression, command on subject. These are all important things. I'll touch upon very important. If you want to be a good communicator, get feedback from somebody. Give a speech of 10 minutes, 15 minutes in front of some of your very close friends or colleagues, and tell him that they will judge you. They will assess you on point scale of 1 to 5, 0 to 5 on these following points. Please note it down. Variety and variability. There has to be variety and variability in the tongue. There has to be audibility, whether you are audible or not. Pace, the speed by which you speak. Pitch, articulation and pronunciation. Yes, you should have a perfect articulation and pronunciation, friends. The correct one. There are only 2 English pronunciations are acceptable worldwide. They are American and English. There is no Gujarati English, and there is no Marathi English, and there is no Malayalam English. Mother tongue influence, I understand. It is obvious, but you have to correct it. Emphasis on the point. Whenever you talk something,
you should be in a position, a back of mind, you should remember what is emphasis, which is the point which I really want to put. What is the gist of the entire talk? Emphasis. Pause. Friends, pause is very, very important because people should get some time to digest what we are speaking. Energy and enthusiasm. Yes, whenever you speak something, there has to be an energy level, very high energy level, and the kind of enthusiasm with you, the way you speak. Friends, people will be at high energy level and they'll be easily absorbing. They'll be appreciating you. They'll be accepting whatever you are saying. The enthusiasm plays very important role. Next is eye contact. It's very important. They are all non-verbal communication skills, but they are very important. Eye contact, facial expressions. Yes, the point which you are putting across, your face should show same. आपका चेहरा कुछ अलग बात कर रहा है. It would not work. Gestures and movements. Please watch yourself. You don't have any bad habits of, taking out specs in and out, pulling your pants with the belt. Sorry, these things disturbs. These creates comedy. We are not here to do comedy, friends. The postures and body orientation, the way you talk, the way you move, the way you make your facial expressions, they are very, very important. So posture and body orientation, proximity, humor is very important, friends. Whenever you talk to somebody, be humorous in your talk. It relaxes, and once the person listening to you is relaxed, he will absorb well. Friends, these are non-verbal communication skills. Verbal communication skills, I have given you the list. So friends, please remember that communication is an art and skill, and you have to improve. Whether you are talking to your parents early morning, whether you are talking to a girlfriend or boyfriend, whether you are talking to your general friends, dada, dadi, nana, nani, you are selling a product, you are talking to your bosses, or you are talking to your subordinates, friends, communication would play a most important role in your life. Master communication, make it an agenda, and I'm sure you will be a wonderful communicator in your life. This is Dr. Vivek Nanoti signing off. Thank you so much, my dear students. Please do like, share and subscribe my YouTube channel, Vivek Nanoti. You can also catch me also on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Once again, thank you. Thank you so much, friends. Coming up with a very important topic of our life. Most important rather. If you really want to manage time, you have to manage. If you really want to manage life, if you want to be successful, the most important mantra, the most important activity, the most important aspect of planning, और वो क्या है? Time management. Friends, I want to talk to you about time management today. It is very, very important. हमने गोल सेटिंग पे बात की, हमने कम्युनिकेशन स्किल पे बात की. आप मेरे सारे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. But today I want to discuss, I want to put forth a very specific, very fundamental, the very important handy tips for time management. Time management, friends, is such an important task in your life. Time management is life management. सुबह उठने से रात को सोने तक हमारे हर दूसरे सेंटेंस में जो हम बोल रहे हैं उसमें समय का जिक्र जरूर होता है. मैं समय हूं, महाभारत हम देख रहे हैं. मैं समय हूं, डरा रहा है समय सबसे बलवान. वक्त की बात है दोस्तों. समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी समय को हम सुबह से शाम तक देखिए. आप कोई 4 सेंटेंस ऐसे नहीं बोलते जिसमें समय का जिक्र ना करते हो. यू हैव नॉट स्पोकन इवन 4 गुड सेंटेंसेस वेर इन यू हैव नॉट मेंशन द वर्ड टाइम. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिनिश अप, व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट, व्हाट टाइम आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई home for my college, what time I'll be back, what time I'll take my dinner, what time I should take lunch, what time. See, दिन में 1000 बार हम लोग टाइम की बात करते हैं, लेकिन उसी समय का प्रबंधन करना भूल जाते हैं. एवरीबडी नोज. किसको नहीं पता टाइम अच्छा है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका वक्त अच्छा है, किसका वक्त अच्छा नहीं है. टाइम इज सो मच स्पोकन इनटू, वी आर यूजिंग दिस वर्ड सो फ्रीक्वेंटली, बट एट द सेम टाइम आयरनी ऑफ इट इज हम समय का प्रबंधन करना भूल रहे. वी आर फॉरगॉटन. We have not kept any watch on how much time I am wasting and how much time I am utilizing. दोस्तों, दुनिया में ऊपर वाले ने हमारे नसीब से बोलो, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को बहुत रईस बनाया. कोई अंबानी के घर पैदा हो रहा है और कोई किसी गरीब झोपड़ी में. कोई रईस है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई रईस है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, IIT में जा रहा है, किसी से 10वीं पास होते नहीं बन रहा है.
बहुत बहुत हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया है, अलग अलग तरीके से बनाया है, अलग अलग एनवायरमेंट में रखा है। बट दोस्तों, कर्म करने का अधिकार ऊपर वाले ने सबको दिया, और वो कम कर्म करने के लिए सबको एक सरी का वक्त दिया है, एक दिन के अंतर्गत 24 घंटे। कितना दिया है हमको? 24 घंटे। वी ओनली गेट 24 आवर्स, वेदर इट वॉज मदर टेरेसा, वेदर इट वॉज रतन टाटा, दीपिका पादुकोण, अंबानी, अरिजीत सिंह, विराट कोहली या नरेंद्र जी मोदी, सबको 24 घंटे मिले। सबके दिन में 24 घंटे है, बट दी सक्सेस स्टोरीज आर डिफरेंट फ्रेंड्स। आपको और मेरे को भी 24 घंटे मिले, और विराट कोहली और नरेंद्र मोदी जी को भी 24 घंटे, अंबानी को भी मिले और दीपिका पादुकोण को मिले, साइना नेहवाल को भी उतने ही मिले, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भाभा जैसे को उतने मिले, अल्बर्ट आइंस्टाइन को उतने मिले, गैलीलियो को भी 24 घंटे मिले। उन्होंने अपने समय का प्रबंधन इतना खूबसूरती से किया। अ कंप्लीट सक्सेस मंत्र, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो पे आया हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट मेड देम देयर लाइफ सो सिग्निफिकेंट? इन लोगों की सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी कैसे बन गई, और हमारी भी बन सकती है अगर हमने, इफ वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। It is very important. Unless you manage your time, time management is life management. People have very haphazard kind of life, no lifestyles, very poor and bad lifestyles. Just lifestyle bad है मतलब क्या है? Time is not managed. So time management is nothing but life management, friends. It is so important. सुबह से लेके शाम तक अगर मैंने प्लान नहीं कर रखा है तो मेरा कितना समय बर्बाद होता मुझे ही पता नहीं. You literally kill time. Now this lockdown is going on currently. अरे घंटों निकल जाते हैं. सुबह 6 बजे उठने वाला आदमी 10 बजे उठ रहा है. दिन के 4 घंटे, 4 hours, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर प्रोफेशनल्स, माय डियर फ्रेंड्स. 4 घंटे क्या होते हैं? टाइम किलिंग. वर्ड कितना गंदा है. टाइम, यू किल द टाइम एंड देन टाइम विल किल यू. टाइम विल किल यू. कितना समय हम रोज बर्बाद कर रहे हैं. अरे हम लोग फोन पे बात कर रहे, फाइन, हम खाना खा रहे, आराम कर रहे, टीवी देख रहे, फैमिली के साथ समय बिता रहे, दोस्तों के साथ बिता रहे. अरे कितना सारा समय हम बिता रहे, उसके बावजूद हमारे पास कुछ 7-8 आवर्स ऐसे बच सकते जिसमें हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते. अगर हमने किया तो हम सक्सेसफुल, अगर हम ना कर पाए तो गलती हमारी है. ये किसी की गलती नहीं. ये कोई आपके टीचर की नहीं, आपके फैमिली की नहीं, ऊपर वाले की नहीं, आपके लक की नहीं. ये आपकी गलती होगी अगर आपने ये समय का प्रबंधन न किया हो. बहुत जरूरी है. और ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय डियर friends, create one copy and write down, do analysis. एक बार अगर समय का प्रबंधन हम सीख लिए, once we understand the importance of time and the importance of time management, the correct way of time management, friends, your life will be smooth. It would be a cakewalk. It will be very easy, no stress, no tension. For everything in your life you will have time. Everything in your life. You want to have fun? Yes, you have time. You want to chat on WhatsApp? You want to watch YouTube videos? You want to watch movie? You want to spend time on टपरी? चाय पी रहे, दोस्तों के साथ बैठ रहे, मस्ती कर रहे, कैफे में बैठ रहे, ये सबके लिए समय है अगर वो निर्धारित समय के हिसाब से किया जाए तो. एक लॉग बुक बना लीजिए, एक कॉपी बनाइए. मेरा आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, एक कॉपी में लिख लीजिए और 8 दिन तक, आज पहला दिन है, आज से 8 दिन तक बस इतना करते रहिए कि हर 1 घंटे बाद सोच लीजिए पिछले 1 घंटे में मैंने किया क्या है. आई डिड एक्सरसाइज, आई डिड चैटिंग, आई रेड बुक्स, आई स्पेंड टाइम ऑन फोन कॉल्स, आई स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया सर्फिंग, आई डिड गूगल, आई डिड नथिंग. वो वाला भी समय लिखे, यार पिछले 2 घंटे में किया क्या मैंने. टीवी भी नहीं देखा, बैठा था, यूं ही समय बर्बाद कर दिया. वो भी लिख लीजिए कि 30 मिनट से तो मैंने कुछ नहीं किया. आई डिड नथिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू विल कम टू नो, माई गॉड, इस 24 घंटे ठीक है, 8 घंटे आप सो लीजिए, no problem. For an healthy life, for an healthy body, have 8 hours sleep. 6 घंटा काफी है, लेकिन आप 8 घंटे सोइए. 2-3 घंटा मस्ती करिए, 4 घंटे, 12 घंटे कर दीजिए उसके लिए अलॉट. पर बच्चे 12 घंटों का अगर प्रबंधन न किया जाए, इफ यू विल नॉट मैनेज, इफ यू विल नॉट डिसाइड, डिफाइन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ दैट. एवरीबडी हैज गॉट गोल्स इन देयर लाइफ. मेरे को ये बनना है, मेरे को बड़ा बनना है, एक निर्धारित गंतव्य की ओर हमको चलना है. रोड टू सक्सेस, माई ड्रीम्स. सपने तो हम बहुत देखते हैं और सपने देखते देखते पता नहीं कितना समय बर्बाद कर देते. सपने सोचिए, सपना आ गया, देख लिया, यार मेरे को ये बनना है, मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए बस वही रोक लीजिए. स्टॉप एंड देन क्रिएट एक्शन प्लान ऑफ योर ड्रीम्स.
जिसको हम बोलते हैं गोल सेटिंग। आप मेरा गोल सेटिंग का वीडियो भी देख सकते हो, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है गोल सेटिंग के नाम से। क्योंकि माइंड वॉन्डर्स, आई टेल यू, अगर मैं फेसबुक देख रहा हूं यार, कितने घंटे देखूं। इंस्टाग्राम देखते हो आप सब, राइट? बहुत मजा आता है, वाह इंस्टाग्राम, किस किस को नहीं फॉलो करते यार, आधे लोगों को फॉलो करना छोड़ दीजिए आज आप ही, फॉरगेट इट, एंड देन यू कीप वॉचिंग इंस्टाग्राम पे। वाह वाह, एक फोटो दिख गई, रणबीर कपूर ने क्या बढ़िया शेरवानी पहनी यार, ऐसी वाली मेरे को भी खरीदनी है। रणबीर कपूर का यार ये कौन सी मूवी होगी यार, ये वो वाली मूवी है, क्या बढ़िया शेरवानी पहने, कितने लाख की होंगी यार, ये तो फिल्म स्टार, ये तो इतनी फेमस करण जौहर की मूवी में ये वाली शेरवानी पहनी यार। चालू हो गया हमारा सोचना। मैं देख क्या रहा हूं, मैं दोस्त की, मेरे को उसकी कोई शादी में अटेंड किए वाली फोटो मैंने देखी और मैं सोचना क्या चालू कर दिया, वो शेरवानी की कीमत कितनी होगी। फिर मेरे को याद आ गया यार, अगले महीने तो मेरे भी कजिन की शादी है और पापा ने बोला यार तू भी शेरवानी खरीद लेना अच्छी वाली। फिर मैं सोचने लगा यार, पर ये वाली शेरवानी बहुत प्यारी लग रही, पर ये बहुत महंगी होगी। या आप कोई लड़की है तो आप सोच रहे यार, ये वाली लाचा, ये वाला घाघरा चुन्नी कितनी प्यारी है जो आलिया भट्ट ने पहनी है, ये दीपिका पादुकोण ने पहनी है यार, ये मेरी फ्रेंड ने पहनी है, उसने उसकी कजिन की शादी में पहना था, मेरे को भी खरीदना था। चलो पापा से पूछते इसका बजट पापा के पास है कि नहीं। फिर पापा को पूछा तो हो सकता डांट दे यार, ऐसा करते मम्मी को पूछते, मम्मी को ये ड्रेस दिखा देती हूँ, मम्मी ये दीपिका वाला जो ड्रेस ऐसा ही दीपिका ने पहना था, ऐसे ही आलिया भट्ट ने पहना था, वही वाली ड्रेस मेरे को खरीदने। पर फिर याद आता, ओहो मम्मी ने बोला था ये वाले अपने कल्चर में तो चलेंगे नहीं, ये तो बैकलेस है, इसमें ये वाले ट्रेंडिंग फैशन वाला ड्रेस तो हम हमारे शादियों में पहनेंगे नहीं। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव, ऐसा होता है, राइट? होता है। आप सब याद करिए, आप एक फोटो देखते हो, माइंड वॉन्डर्स, ये हमारा चल रहा, पूरी दुनिया घूम के आ गया, दीपिका पादुकोण से मिलके आ गया, आलिया भट्ट से मिलके आ गया, बॉम्बे दिल्ली अमेरिका वाला दोस्त, होते होते माइंड वॉन्डर्स फ्रेंड्स, माइंड वॉन्डर्स। और हमको पता नहीं चला कि एक इंस्टाग्राम की एक छोटी सी फोटो ने मेरे 2 घंटे खा लिए, माई 2 hours आर ईटन अप, माई डियर फ्रेंड्स, पैथेटिक। सोचना रुक, कहां से कहां। प्लीज कीप वॉच। तो पहली आदत हमको, आपको एक पहली टिप मेरे को आज देना चाहता हूं, पहली आदत हमको ये लगानी पड़ेगी कि हम क्या सोच रहे हैं, उस सोच के ऊपर एक कंट्रोल, उस सोच की तरफ एक वॉच डॉग है। यार क्या सोच रहे, कम डाउन, एक सड़ी सी फोटो देखी, घुमा दो आगे, चलो गो एट, रख दो फोन बाजू में। अपना कर्तव्य क्या है, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ाई करना है, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है, मेरे को लाइफ में पैसा कमाना है, मेरे को नेम फेम हेल्थ कमानी है, अच्छी हेल्थ कमानी है, नेम फेम लेना है। यार मेरे को 100 काम है, क्या मैं ये इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए पैदा हुआ? नो, ये दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। सो फ्रेंड्स, whenever you keep on thinking, observe your thoughts, keep watching, control your wandering of mind, माइंड कंट्रोल बहुत बड़ा अहम मुद्दा है दोस्तों अपनी जिंदगी का। सोचते सोचते, और कुछ नहीं, ये आदत होती है, ये आदत होती है। जब मैं सोचता हूं, जब मैं खाली बैठता हूं, मैंने सोच के रखना है, क्या सोच रहा हूं मैं, ओ माय गॉड 15 मिनट चलेंगे, चलो ये रख दो, मैं अपने काम पे लगता हूं, तुरंत पीछे लगना है। एक आदत सी बना लेनी है दोस्तों अपने को कि मैं जो सोच रहा हूं उस पर मेरा वॉच है। और किसी भी चीज को सोचने का एक समय होता है, कितना सोचेंगे, सोच के कुछ मिलने वाला है क्या? सोचने में प्लानिंग होता है, नहीं होता है। सोचने में सपने देखे जाते हैं, यार ये वाला वो वाला, कहां से कहां चले गए, कहां एक फोटो देखी थी, कहां दीपिका पादुकोण चले गए, कहां रणबीर सिंह, कहां उसकी फोटो, कहां उसकी कॉयर्स। पापा को पूछूंगा, पापा डांट देंगे, और डांटेंगे तो पिछली बार भी डांटा था यार, मैं अब मैं सहन नहीं करने वाला हूं ये पापा का डांट। अब मैं भी नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, माय गॉड करियर पे पहुंच गया, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं अच्छी नौकरी करता हूं, इससे महंगी वाली शेरवानी अपने पैसे से खरीदूंगा। कमान, ये सब सपने कोई काम के नहीं जब तक सपनों को एक एक्शन प्लान में नहीं बांधा जाता है। ये हर बार मेरे को, और आदमी की मतलब ये मन है, ये माइंड है, ये माइंड वॉन्डर्स, उसका स्वभाव है घूमना। बट मेरा माइंड है ना, माइंड मेरा है, हाथ मेरा है, मैं ऐसा रखूं, कंट्रोल मेरा है, ये हाथ मेरा, ये पैर मेरे, ये बॉडी मेरी, वैसा माइंड मेरा है। ध्यान रखिए, यू आर फॉर माइंड, यू आर नॉट फॉर माइंड, माइंड इज योर्स, यू आर नॉट ऑफ योर माइंड। माइंड जो बोलेगा वो करोगे क्या? नो, आई विल चेक, आई विल वॉच, आई विल हेड एंड हार्ट वॉच करूंगा, समझ लूंगा यार इसकी जरूरत है। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस मोमेंट। कभी भी कोई भी मोमेंट में एक क्वेश्चन अपने आप से, एक सवाल अपने आप से जरूर करिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी? यू आर मच पावरफुल देन व्हाट यू आर, आई टेल यू।
जस्ट डोंट फील कि यार मन तो कंट्रोल होता ही नहीं। मेडिटेशन करिए, कोई जरूरत ही नहीं। अगर आपने अपने आप को पूछना शुरू कर दिया, यार ये क्या बात कर रहे हो, यार मैं क्या सोचने लग गया, सोचने में बहुत समय बर्बाद होता है दोस्तों। टाइम वेस्टेज अगर ढूंढना है, आपको बताया जैसे लॉकडाउन पूरा लॉग बुक बनाइए, जैसे ड्राइवर बनाता है, टैक्सी में अपन जाते ड्राइवर बनाते हैं, सुबह 10 बजे आया, 11 बजे ये गांव पहुंचा, 12 बजे लंच के लिए यहाँ गाड़ी रोकी, आधे आधे एक एक घंटे का हिसाब लिखता है, लॉग बुक बोलते हैं उसको। वैसे आपकी जिंदगी की लॉग बुक बनाइए, अगले 8 दिन तक बनाते रहिए, सोचते रहिए। संडे भी आ जाए उसके अंदर, सैटरडे भी आ जाए, उसको एक इस तरीके से बनाइए कि दोस्तों एक बार का वंस फॉर ऑल आई हैव द हिसाब ऑफ टाइम यूटिलाइज एंड टाइम वेस्टेड। वंस आई गेट माई टाइम वेस्टेड का complete analysis, then I'll start working on it. You literally have to work upon it, my dear friends. ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता। समय का प्रबंधन बहुत, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट यार। जिसने समय को समझ लिया, जिसने समय का सही सदुपयोग करना सीख लिया, उसकी तो जिंदगी बन गई, उसकी सक्सेस स्टोरी तय है। तो हर बार अपने दिमाग को मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा पूछते रहना पड़ेगा। अगर आप सिंपल थाली लेके खा रहे हो, रोटी आ गई, चावल आ गया, सब्जी आ गई, आप बैठे डाइनिंग टेबल पे, अपने आप को फिर से पूछिए, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट थाली में रोटी लगी है, सब्जी लगी है, अचार लगा है, चावल दाल लगी है, इस मोमेंट पे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो खाना खाना, नथिंग बट ईटिंग। एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम ऑन माई डाइनिंग टेबल, आई हैव टू ईट, I have to concentrate on my eating. I have to understand what I am eating. I have to pay attention to what I am eating and not the Facebook, the TV, the mobile, the Instagram, the chat, the phone calls. टीवी देख के खाना खा रही है, खाना खाने को समय कितना लगता है? Concentrate on what you are doing and every time ask what is most important for me. इस समय मेरे लिए क्या है? Keep control. आपके माइंड को अलर्ट रखिए। उसको अगर कंट्रोल हम नहीं कर पाए तो दुनिया में हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। फिर जैसा आया चलते जा रहा है, जो काम आया करते गए, काम आया करते गए, शाम को ये पता चला और ये तो 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो तो मैंने करे ही नहीं, वो तो मेरे को समय ही नहीं मिला करने का। हैव कंप्लीट अवेयरनेस ऑन योर थॉट्स। जिसने थॉट्स को जीत लिया, जिसको मन को वॉच करना सीख लिया, मन को जीतना तो बाप रे, हम तो संत महात्मा बन जाएंगे। मन की जीतने की बात नहीं होती, मेरे को इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे को वो सीखने की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। वो जब तक हम नहीं करेंगे, ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज। अरे मेरे को खाना खाना है, खाने के बाद क्या करना है, घूमने जाओ, खेलने जाओ, एक अच्छी बुक पढ़नी थी। अब 3 में क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छी बुक पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। 8 दिन बाद मेरी एग्जाम है, अब उसके सामने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना टीवी, ना मोबाइल, ना बात करना, ना घूमना, ना फिरना, पढ़ाई, क्योंकि उसमें नंबर लाने हैं। नंबर लाने के बाद रिजल्ट लगने वाला है, रिजल्ट लगने के बाद अच्छी नौकरी लगने वाली है। ये मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके सामने। सो आई हैव अंडरस्टूड माई प्रायोरिटीज इन माई लाइफ। फ्रेंड, वन हु हैज अंडरस्टूड द प्रायोरिटीज इन हिज लाइफ, ही हैज वन हिज लाइफ। मेरी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई है। मेरी प्रायोरिटी क्या है? शराफत से, कॉन्सेंट्रेशन से मैं कार ड्राइव कर रहा हूं। मैंने बेल्ट लगाया कि नहीं, मेरे पास लाइसेंस है कि नहीं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, मेरे चारों चक्कों में कार के मेरे हवा ठीक है, मैं सारे रोड ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कर रहा हूं। मेरे लिए इस मोमेंट पे क्या इंपॉर्टेंट है? तो सेफ ड्राइविंग, अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं तो ये हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि इस वक्त मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कार चलते चलते मैं फोन भी कर रहा हूं, मैं घूम भी रहा हूं, तो समय का बर्बादी तो हो ही रही, एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है। तो जिस वक्त जो चीज हम करना चाहते हैं, उस काम को एक बार का फिक्स कर लीजिए। और आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। यार वो बहुत होशियार है, यार वो रईस बाप का बेटा है, यार वो तो इतनी अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है, यार उसकी तो स्कूलिंग अच्छी, उसकी कॉलेज अच्छी, उसके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे, मेरे नहीं। खत्म है। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। गॉड हैज नॉट क्रिएटेड गार्बेज। ऊपर वाले ने सबको एक बहुत ही निर्धारित कर्तव्य करने के लिए इस भूमि पर रखा हुआ है। यू आर मच मोर देन वॉट यू थिंक। मेरे ये वाक्य याद रखिए, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, आप बहुत अहम है आपके लिए, आप में बहुत ताकत है। यू आर मच मोर देन वॉट यू थिंक। आपको लगता है इतनी ताकत है, आपकी इतनी ताकत है। यू कैन डू वॉट एवर यू डिसाइड। अगर आपने दिल से तय कर लिया, उतनी हिम्मत, उतनी शिद्दत, उतनी ताकत के साथ अगर मैंने ये तय कर रखा है कि मैं ये करके रहूंगा, तो आप करके रहेंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। कैन डू वॉट एवर यू डिसाइड। वॉट एवर, जिंदगी में जो भी तय करना है कर लीजिए, और उसके पीछे दौड़ के एक
निर्धारित समय फिक्स करिए और समय के हिसाब से सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको प्लान करिए और आप, मेरी गारंटी है, आप निर्धारित गंतव्य तक जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, बड़े तेजी से पहुंचोगे, सही रास्ते से पहुंचोगे, क्योंकि रास्ता तय है, मंजिल तय है, स्पीड तय है, टाइम वर्क फ्रेम तैयार है, स्टेप्स तैयार है। अगर इस पर काम किया जाए दोस्तों, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। यू आर योर मास्टर। कभी किसी को वहां, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर इन योर लाइफ। जस्ट डोंट ब्लेम एनीबडी इन योर लाइफ। ही हैज डन दिस टू मी, ही हैज डन दिस टू मी, हिज फादर वॉज गिव। नो, इट इज यू एंड यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर। माई डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए ये, देयर इज नथिंग अबाउट यू विच यू कांट डू। समझ लीजिए, ऐसी आपके बारे में कोई भी चीज नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते। मैं दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गुस्सा बहुत करता है, मैं क्या करूं? उसको समझा सकता हूं, वो मेरी मानेगा नहीं मानेगा, आई डोंट नो। तो मेरे को ये प्लानिंग करना है कि मेरे को एक निर्धारित समय और उस वक्त क्या करना है, इसका प्लानिंग मेरा तय हो। दोस्तों कंटिन्यूस वॉच रखिए, जब भी मैं कोई भी काम कर रहा हूं। आप मेरा वीडियो सुन रही है, आप ये सुन रहे हो, वीडियो मेरा सुन रहे हो, तो पूरी ताकत के साथ एक पेन पेंसिल के साथ लेके बैठिए कि ये 20-22 मिनट मेरे को कुछ सीखने मिलने वाला है। हैव पॉजिटिव माइंडसेट। और इस समय को 22 मिनट 30 मिनट जो भी मेरा वीडियो है 22 मिनट, इस वीडियो को तरीके से देख लीजिए, सीख, बी इनटू लर्निंग मोड, स्ट्रेच योर एंटीनास फ्रेंड्स। ऐसे एंटीना स्ट्रेच करके पूरा रिसीविंग मोड में रहिए, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सिर्फ ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें से आपको जरूर कुछ सीखने मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। आप सीखने वाले हो, तो इस समय आपकी दूसरी और कोई ड्यूटी नहीं। चाहे कोई मैसेज आ जाए, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, दूसरे रूम में रख दीजिए। पर आपको सबसे अहम बात अभी है, आप मेरा वीडियो देखें, उसको समझें, उससे सीखें, उसको नोट डाउन कर लें और उस पर अमल करें। Implementation is something which is so, planning is important but execution is still important. एक बहुत दूसरा मुद्दा हमारे सबके साथ होता है, प्रोक्रास्टिनेशन। क्या है वो? पोस्टपोन करना कोई भी चीज। यार तेरे को आज बोला था करने को, नहीं 2 दिन बाद बोला था, तो मैं कल कर लूंगा। A universal bad habit. Procrastination is a universal bad habit. मैक्सिमम लोगों में होती है। आपको 3 दिन दिए काम में, आज कर ले सकते हैं, आज खाली बैठा हूं पर आज नहीं करूंगा यार, 3 दिन बाद करना है, करेंगे 2 दिन बाद। यू नो दैट यू कैन डू इट टुडे, यू हैव टाइम, बट वी डोंट वांट टू गेट रीड ऑफ दैट वर्क, वी वांट टू टेक दैट थिंग ऑन माई, अपने सर पे लेके चल रहे। 3 दिन डेडलाइन है तो 3 दिन वो काम लेके चल रहे। अरे आज खत्म करके फ्री हो जाओ। अवॉइड पोस्टपोनमेंट्स ऑफ योर वर्क, दिस इज बिगेस्ट मंत्र ऑफ टाइम मैनेजमेंट। Avoid procrastination means postponement, and second is distraction. Distraction पे काबू रखिए। So procrastination, कल करे सो आज कर, कबीर का है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? क्या पता तुमको मैं कल कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी करो यार। दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट यू हैव टू परफॉर्म वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड। क्या पता मेरे को शाम को कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाएंगी, क्या पता कल मेरे को दूसरा कोई काम आ जाएगा, आज मेरे पास वक्त है, आई विल डू दैट। इस पर एक अति होशियार आदमी ने इसका एक मजाक भी उड़ा दिया। उस व्यक्ति का खुद का मजाक उड़ गया होगा, मैं पढ़ते पढ़ते आया तो वो भी आपसे शेयर करता हूं। आज करे तो कल कर, उसने बोल दिया, पैरोडी है उसकी, आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों। ये तो कल भी क्यों कर रहा भाई, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है बरसों। इसको लिख के रखा, इसके पास भगवान ने बताया तेरे को बरसों जीना है। सो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना है बरसों। ऐसे वाले मंत्रा जिनके लाइफ में है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दे विल ओनली पोस्टपोन, दे विल ओनली पोस्टपोन एंड दे नेवर नो। अगर मैं परसों करने वाला हूं तो परसों मेरे पास क्या परिस्थिति रहेगी ये मुझे पता नहीं, पर इस वक्त मेरे हाथ में वक्त है, मेरे हाथ में कर्म करने की ताकत है और मैं इसको करके रहूंगा। दोस्तों ये तय कर लीजिए कि कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करेंगे लाइफ में। अब भी करिए, मेरे पास समय है, मैं अभी करूंगा, मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, मेरे को मालूम है डेडलाइन परसों है, पर मेरे को अभी करना है। जब तक हम लोग ये सब नहीं कर सकते दोस्तों, तो हमारी लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टी आती रहेंगी। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सीज द डे। जब मेरे को आज करना है ना, लिव इन दिस मोमेंट, लिव इन दिस मोमेंट, बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, लाइफ इज हैपनिंग राइट नाउ। तो एक है पोस्टपोनमेंट, अब भी समय है कल करूंगा, अभी समय है परसों करूंगा। और दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस। डू नॉट गेट इनटू डिस्ट्रैक्शन, उनके मोह में मत फंसिए, मोह के धागे, इसमें मत फंसिए।
आप घर से निकलते हो, मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं टीचर, मेरी आदत है टीचर बच्चों से बात करने की, बच्चों को बोलता हूँ सके सुबह सुबह 6:30 बजे हमारे यहाँ दूर दूर से बच्चे आते, 20-20 किलोमीटर से मेरे कॉलेज में आते, सुबह से बेचारे साइकिल स्कूटर जो भी है उनके पास आते, सुबह मम्मी टिफिन बनाती है, सब कुछ करती है, और असाइनमेंट कंप्लीट किया होता है रात को जागकर, कॉपीज लिया, बस्ता लिया, यूनिफॉर्म पहना, निकले, 20 किलोमीटर ड्राइव करके कॉलेज पहुंचे। एक ही लक्ष्य था साथ में, सुबह 5 बजे उठे, नहाए, नए कपड़े लिए, प्रेस किए, यूनिफॉर्म पहना, मम्मी ने टिफिन बनाया, असाइनमेंट की कॉपी चेक की, जर्नल की कॉपी चेक की, और सब गाड़ी में डाल के पहुंचे कहां पे, कॉलेज। 20 किलोमीटर ड्राइव किया। निर्धारित गोल क्या था, सोच के क्या आए थे कि 8:30 का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और 8:30 का सर की क्लास है, मेरे को करनी है, 9:30 बजे दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी मुझे करनी है। ये गोल सेट था। और जैसे पार्किंग में आ गया, पार्किंग में आए, 2-4 दोस्त मिल गए, गाड़ी रखा, भाई यार 8:30 की क्या क्लास कर रहे हो यार, छोड़ो ये बोरिंग सर है यार, अपन थोड़ा सा चाय पी के आते, ठंडी का मौसम है यार, चाय पीते, चलो कैंटीन चलते। डिस्ट्रैक्शन, एंजॉइंग द रोड। मैं रोड पे हूं, मेरा निर्धारित गंतव्य क्या था, क्लासरूम में जाके पढ़ना। जब से मैं घर से निकला हूं, मेरी रूम से निकला हूं, तो मेरी क्लासरूम तक का मेरा रास्ता तय है। मुझे क्लासरूम जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं मेरे निर्धारित जगह पे पहुंच ही नहीं रहा हूं। आई हैव नॉट रीच टू माई गोल, आई हैव नॉट रीच टू माई डेस्टिनेशन अनलेस आई एम इन टू दैट क्लासरूम। और मैं पार्किंग में, मेरे को दोस्त मिल गए, दोस्तों ने बोला यार छोड़ यार, क्या फायदा है, लेट्स हैव टी, लेट्स हैव कॉफी। फिर वहां से पता चला यार एक मूवी लगी है, सुबह का शो सस्ता होता है, चलो यार मूवी देखते। गया दिन खराब हो गया, आपने जो समय व्यर्थ डाला है दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हो, सबके साथ होता है, पर ये डिस्ट्रैक्शन आदमी को बहुत 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 महंगा पड़ता है। ये डिस्ट्रैक्शंस को अगर हमने एंटरटेन करना शुरू कर दिया, किसने बोला चाय पी लेते, यार रुकना क्लास मत कर, चलो चाय पी लेते, छोड़ यार इस बार एग्जाम मत दे, विंटर में एग्जाम दे, यहां तक के लोग समझाने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोगों की सुनने वाले महामूर्ख लोग भी होते हैं जो अपनी जिंदगी का खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों बहुत खराब लगता है मेरे को। दोस्तों प्लीज ध्यान में रखिए, अपना डेस्टिनेशन, अपना गोल, अपना कर्तव्य, अपना समय अपना है, ये मेरा है। आई कैन नॉट बी सेल्फिश, बट आई शुड बी सेल्फ सेंटर्ड। आई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई सेल्फ एस्टीम। एंजॉइंग द रोड इज नॉट फॉर यू. Fear for failure is not for you. You have fixed your destination and you have to reach there, my dear friends. ध्यान रखिए, आपने जहां से शुरुआत की वहीं पहुंचना चाहिए। समय का प्रबंधन कीजिए, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपकी जिंदगी गुजर सकती है। आप जो चाहो आपको मिल सकता है। यू कैन डू वॉट एवर यू कैन डू, माई डियर फ्रेंड्स। Once again, I appeal you that please work on my formula which I have shared you. Another part 2 of this time management is coming up with a lot of important fixed formula based tips. See you all into the second part of this video of time management, which is a success mantra for everyone's life. My dear students, my dear friends, all those who are watching my video, thank you so much for being with me for 25 minutes. And do subscribe, like and share my YouTube channel, Vivek Nanoti. See you all in the second part of this same video, in which I am going to share very important tips of time management. Thank you so much, my dear friends. See you all in part 2.